دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے اس دیش کی بات کریں گے جہاں شہزادے اور شہزادیاں رہتی ہیں اور یہ لوگ اپنی دولت کو پھول جھڑی کی طرح اڑا دیتے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو ان شہزادوں کی عیاشی کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ گولڈ کی بنی اشیاء کے دیوانے کیوں ہوتے ہیں۔ گولڈ کے بنے ہوئے ٹوائلٹ، ہیرے کی بنی ہوئی انگوٹھیاں اور سونے کی بنی ہوئی گاڑیاں ہی آخر وہ کیوں پسند کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد دیش ہے جہاں ہر روز کسی نہ کسی انسان کے یا تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں یا پھر سر قلم۔ یہ دنیا کا واحد دیش ہے جہاں جادو ٹونا کرنے والوں کو بھی موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اس دیش میں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ اس دیش میں عورتوں پر سخت قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اس دیش میں عورتیں اپنی شوہر کی اجازت کے بنا گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی، کسی غیر مرد سے بات نہیں کر سکتی، شوہر یا والد کی اجازت کے بنا نہ تو تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور نہ ہی بیرون ملک سفر پر جا سکتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں شیعہ دھرم کے لوگوں سے شادی بھی نہیں کر سکتی۔ اس دیش میں عورتیں جتنے چاہیں بچے پیدا کر سکتی ہیں اور فیملی پلاننگ کرنا بھی جرم ہے۔ اس دیش میں ریپ کرنے والے کا سر قلم کاٹ دیا جاتا ہے۔ پورن ویڈیوز دیکھنا بھی جرم ہے۔ اگر کوئی پورن ویڈیوز دیکھتا پکڑا جائے تو اسے موت کی سزا ملتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد دیش ہے جہاں ویلنٹائن ڈے نہیں منایا جاتا اور ویلنٹائن ڈے کے دنوں میں یہاں کی مارکیٹوں میں پھول بیچنا اور دکانوں پر دل جیسی چیزیں بیچنا بھی جرم ہے۔ اس دیش میں انسان کم اور کاریں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں کی آبادی 3 کروڑ جبکہ کاریں 9 کروڑ سے زائد ہیں۔ اس دیش میں پیٹرول سے مہنگا پانی بکتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد دیش ہے جہاں کسی کو بھی نیشنلٹی نہیں دی جاتی اور اگر کوئی غیر مسلم مر جائے تو اسے دفنانے کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں دی جاتی۔ اس دیش میں نشہ، شراب اور الکوہل بین ہے۔ اگر کوئی نشہ کرتے پکڑا جائے تو اسے کڑی سی کڑی سزا دی جاتی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے جس دیش کی بات کریں گے اسے لوگ سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کے بارے میں ایسی دلچسپ و عجیب باتیں بتائیں گے جن سے آج کی ہماری نئی نسل ناآشنا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ یا جہاز کیوں نہیں اڑ سکتا، اور اس دیش میں موجود وادی جن کی حقیقت کے بارے میں بھی بتائیں گے جہاں آپ کسی گاڑی کو کھڑی کر دیں تو وہ خود بخود چلنے لگتی ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دلچسپ معلومات سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو سعودی عرب حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے کیونکہ یہاں اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ سن 1938 سے پہلے یہ ایک غریب ملک تھا اور یہاں پر خانہ بدوش بدوؤں کا راج تھا، مگر تیل نکلنے کے بعد اس ملک کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اس دیش میں شہزادوں کی تعداد تقریباً 7000 ہے اور جہاں تک شہزادیوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہ سب سعودی عرب کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سن 1932 میں سعودی سلطنت قائم کرنے والے عبدالعزیز بن سعود کی اولاد ہیں۔ آل سعود پیدا ہوتے ہی شہزادہ کہلاتا ہے اور اسے تخت حاصل کرنے کا بھی پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ عبدالعزیز بن سعود نے مختلف قبائل میں متعدد شادیاں کی تھیں اور ان سے کئی درجن اولادیں بھی ہوئیں۔ واضح طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کی کتنی بیویاں تھیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ عبدالعزیز بن سعود نے 20 سے زیادہ عورتوں سے شادی کی تھی۔ عرب کے یہ ارب پتی شہزادے اپنی دولت کو پھول جھڑی کی طرح اڑا دیتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی عیاشی کو دکھانا پسند کرتے ہیں، گولڈ کی بنی ہوئی اشیاء کے دیوانے ہوتے ہیں۔ گولڈ کے بنے ہوئے ٹوائلٹ، ہیرے کی بنی ہوئی انگوٹھیاں، سونے کی بنی ہوئی کاریں اور دنیا کی ہر مہنگی چیز کو خریدنا یہ شہزادے پسند کرتے ہیں۔
इन शहजादों की रिवायत है कि ये हर साल अरबों रुपए मालियत की दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों का काफिला लेकर मगरबी ममालिक की चमकती दमकती दुनिया और रोशन शहरों की सैर को जाते हैं, और इन कारों को करोड़ों रुपए खर्च करके महंगी तरीन एयरलाइनों के जरिए हजारों मील का सफर इन्हें जहाज़ों में कराया जाता है, जिस पर फी कार 20,000 पाउंड तकरीबन 23 लाख पाकिस्तानी रुपए खर्च आता है। यानी एक कार को तफरीही दौरे पर ले जाने का खर्चा ही हमारे यहाँ की एक अच्छी कार की कीमत से ज़्यादा है। सऊदी अरब का सरकारी नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। 3 करोड़ 48 लाख अफराद पर मुश्तमिल ये देश दुनिया में आबादी के लिहाज से 41वें नंबर पर आता है। सऊदी अरब में औरतें हिजाब करती हैं और इन्हें किसी गैर मर्द से मिलने की इजाज़त नहीं होती। औरत को घर से बाहर निकलना हो तो इसके साथ एक मर्द ज़रूर होता है। अकेली औरत अपने ड्राइवर के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती, इसके साथ किसी महरम मर्द का होना ज़रूरी होता है। औरत टैक्सी करवाने पर भी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर नहीं बैठ सकती, बल्कि वो गाड़ी के पिछली सीट पर बैठती है। होटल्स और रेस्टोरेंट में भी औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग दरवाजे बने होते हैं। होटल के अंदर भी औरत अपने महरम के अलावा किसी गैर मर्द से बात नहीं कर सकती। औरत को तालीम हासिल करने के लिए भी किसी महरम मर्द से इजाज़त लेना लाजमी होता है। औरत को नौकरी करने के लिए भी अपने वालिद या शोहर की इजाज़त लेना लाजमी होता है। औरत के बैरून मुल्क जाने से पहले और वीज़ा लगवाने के लिए भी अपने शोहर या अपने वालिद से इजाज़त लेना लाजमी होता है। बॉर्डर पर आजकल ऑटोमेटिक SMS सर्विस बनाई गई है। बॉर्डर पार करने वाली हर औरत की इतला इसके शोहर या इसके वालिद के सेल फोन पर दे दी जाती है। सऊदी अरब में औरत का गाड़ी चलाना मना है और ख़वातीन को गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं मिलता। सन 2016 में ख़वातीन की ड्राइविंग से पाबंदी हटा दी गई थी, मगर ट्रैफिक निज़ाम ख़राब होने की वजह से दोबारा पाबंदी लगा दी गई। सऊदी ख़वातीन किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती, मगर अब कानून में थोड़ी सी नरमी की जा चुकी है। औरतें किसी भी मज़हब की हों, सऊदी एयरपोर्ट पर दाखिला से कबल इन पर बुर्का ओढ़ना लाजम होता है, मगर आजकल किंग सलमान की वजह से कानून में कुछ नरमी बरती गई है। कुछ दिन कबल सऊदी अरब में अरब फैशन वीक का इनकाद हुआ, जिसमें सारे मुल्क की ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मगर यहाँ मर्दों के दाखिला और कैमरा ले जाने पर पाबंदी आई थी। सऊदी अरब में सिनेमा पर भी पाबंदी थी, मगर किंग सलमान की वजह से सऊदी अरब में अब सिनेमा बाकायदा तौर पर एक इंडस्ट्री बनता जा रहा है। बहरे अहमर के शुमाली मशरकी साहल पर एक रिजॉर्ट बनाया जा रहा है, जहां औरतों के लिबास पर पाबंदी नहीं होगी। ये मगरबी तर्ज का रिजॉर्ट कायम होने जा रहा है। ये तमाम तर नई तब्दीलियाँ एक हैरानकुन बात है। कुछ अरसा कबल सऊदी अरब के पहले कैसीनो का भी इफ्तिताह हुआ और जहां पर बाकायदा तौर पर जुआ भी खेला गया। सऊदी अरब में औरतों की तादाद मर्दों से 2 गुना है। यहाँ औरतों का मखसूस सामान मर्द फरोख्त नहीं कर सकते, इसी वजह से औरतों को जॉब की इजाज़त मिली। इससे पहले ख़वातीन को सऊदी अरब में जॉब करने की इजाज़त नहीं थी। सऊदी औरतें दूसरे मज़हब के लोगों से शादी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो शिया धर्म के लोगों से भी शादी नहीं कर सकती। सऊदी अरब एक इस्लामी देश है, हर काम इस्लामी असूलों के मुताबिक होता है। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद इस्लामी देश है जहाँ पर नशा, शराब और अल्कोहल बैन है। यहाँ पर रैप करने वाले का सर कलम कर दिया जाता है। सऊदी अरब में पोर्न वीडियोस देखना जुर्म है। अगर कोई पोर्न वीडियोस देखता पकड़ा जाए तो इसे मौत की सज़ा मिलती है। इस देश में हमजिन्स परस्ती की सज़ा भी मौत है। सऊदी अरब में औरतें जितने चाहें बच्चे पैदा कर सकती हैं और इस देश में बर्थ कंट्रोल अद्वियात का इस्तेमाल भी मना है। इस देश में जुर्म साबित होने के 3 दिन के अंदर आपको सज़ा मिलती है। अगर कोई चोरी करते पकड़ा गया तो इसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद देश है जहाँ सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा दी जाती है और यहाँ पर हर रोज़ एक बंदे का सर कलम या इसके हाथ ज़रूर काटे जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद देश है जहाँ पर जादू टूना बैन है। अगर कोई तावीज़ के साथ पकड़ा गया तो इसे भी मौत की सज़ा मिलती है।
यहाँ पर पुलिस की एक स्पेशल फोर्स भी कायम है जो सिर्फ जादू टूना वालों को पकड़ती है। सऊदी अरब में खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी थी, मगर 5 साल पहले इनको वोट का हक दिया गया। ये पहला कानून था जो काफ़ी अरसा बाद सऊदी अरब में चेंज हुआ। सऊदी अरब दुनिया का वह देश है जहाँ किसी गैर मुल्की को नेशनलिटी नहीं दी जाती, और अगर कोई गैर मुस्लिम सऊदी अरब में मर जाए तो इसे दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं दी जाती, बल्कि डेड बॉडी को इसके देश वापस भेज दिया जाता है। ये दुनिया का वह देश है जो वैलेंटाइन डे नहीं मनाता, और वैलेंटाइन के 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक सऊदी अरब के बाज़ारों और मार्केटों में फूल बेचने और दिल जैसी कोई चीज़ सेल करने पर भी पाबंदी आयद होती है। इसके अलावा साल के बाकी दिनों आप जब चाहें फूल या दिल जैसी कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। मक्का दुनिया का वाहिद शहर है जहां पर कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। मक्का के स्टार्ट में एक खुसूसी जगह कायम है जिससे आगे कोई गैर मुस्लिम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। सऊदी अरब का कैपिटल अल रियाद है जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ऊँटों का सबसे बड़ा बाजार भी अल रियाद में लगता है। यहाँ पर रोज़ाना 300 से 400 ऊँटों की खरीदो फरोख्त होती है। यहाँ पर ऊँटों की दौड़ के मुकाबले भी मुनक्कद किए जाते हैं। ऊँटों की दौड़ का यह ट्रैक 19 किलोमीटर पर मबनी होता है और हर साल 2000 से ज़्यादा अफराद इस मुकाबला में शरीक होते हैं। नमाज के वक्त सारे कारोबार बंद कर दिए जाते हैं। हर नमाज के लिए तकरीबन 20 मिनट का वक्फा होता है। यहाँ पर आपको इस्लाम के अलावा दूसरे किसी मज़हब की इबादतगाह नहीं मिलती। वादी जिन का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि सऊदी अरब की एक पुरस्कार वादी है। यहाँ आप अगर अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दें और इसके गियर को न्यूट्रल पर रख दें तो आपकी गाड़ी खुद ब खुद 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलना शुरू हो जाती है और ये सिलसिला 14 किलोमीटर तक मुसलसल जारी रहता है। मकामी लोगों के नज़दीक यहाँ पर जिन्नात रहते हैं जो कि गाड़ी या वहाँ पर रखी किसी भी चीज़ को आगे की तरफ धकेलते हैं, इसलिए इस वादी को वादी जिन का नाम दिया गया है। ये मकाम मदीना मुनव्वरा से शमाल मगरब की जानब 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लोग इसे भी अल्लाह ताला का एक मौजज़ा मानते हैं। ये बात आपको सुनकर हैरानी होगी कि खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज़ या कोई परिंदा नहीं उड़ सकता। खाना काबा ज़मीन का मरकज़ है और ये वो मकाम है जो बिल्कुल ज़मीन के बीच वाक़ है। सेंटर का मकाम होने की वजह से यहाँ ज़मीन की कश शकल काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ मकनातीसी कुव्वत भी ज़्यादा कारफरमा होती है। अगर आप हाथ में मकनातीस पकड़ें तो कोई लोहे की सलाख या लोहे के टुकड़े इसके ऊपर नहीं ठहर सकते, वो मकनातीस के दाएं बाएं आकर चिमट जाएंगे। इसी तरह काबा के ऊपर से कोई परिंदा और ना ही कोई जहाज़ गुजर सकता है, और काबा से निकलने वाली रोशनी बिना किसी रुकावट से ज़मीन और खला को फाड़ती हुई सीधी 7वें आसमान तक पहुंचती है जहां पर बैतुल मामूर वाक़ है। कुरान के मुताबिक बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और रोज़ाना यहाँ 17,000 फरिश्ते काबा का तवाफ़ करते हैं और ज़मीन के काबा को बिल्कुल बैतुल मामूर के काबा की शक्ल का बनाया गया है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने खुद दिया था। हर साल सऊदी अरब में हज होता है। मुसलमान जिस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं वो भी खाना काबा की तरफ होती है। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है और दुनिया में बिना कोई नदी वाला ये वाह देश है। ये लोग समंदर के पानी को फिल्टर करके पीते हैं। यहाँ पर समंदर के पानी को फिल्टर करने के बड़े बड़े प्लांट नस्ब हैं। ये दुनिया का वाह देश है जहाँ पर पेट्रोल सस्ता और पानी महंगा है। आप सऊदी अरब जाकर तस्वीर या वीडियो नहीं बना सकते। आप ना तो किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग की तस्वीर बना सकते हैं और ना ही आप किसी ऐसे फर्द की तस्वीर खींच सकते हैं जिसको आप नहीं जानते। वीडियो और तस्वीर बनाने से पहले आपको बाकायदा तौर पर परमिशन लेना लाजम होता है। अगर आपने परमिशन ना ली तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। सऊदी हर दिन 80 लाख डॉलर से ज़्यादा स्मोकिंग पर खर्च कर देते हैं। सन 2012 में यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट पीने पर पाबंदी आई थी और बच्चों पर भी स्मोकिंग करने पर पाबंदी आयद है।
टैबेको इंपोर्ट करने वाला ये दुनिया का चौथा बड़ा देश है। सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का ख्वाब दुनिया का हर मुल्क देखता है। इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बुर्ज खलीफा के नाम से वाक़ है, मगर अब सऊदी अरब में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन रही है जिसे किंगडम टावर का नाम दिया जाता है और इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। इससे पहले दुनिया में कोई एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो। इस देश में आबादी से ज़्यादा कारें हैं। इस देश की आबादी 3 करोड़ जबकि इस देश में कारें 9 करोड़ से ज़्यादा हैं। आबे ज़मज़म सारे मुल्क में इस्तेमाल होता है और हज के मौका पर पूरी दुनिया से आने वाले हुज्जाज कराम आबे ज़मज़म को अपने देशों में वापस ले जाते हैं, मगर आज तक ये पानी कम नहीं हुआ। इस देश का रकबा 51 लाख और 50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 12वां रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किंग फाहद एयरपोर्ट सऊदी अरब में वाक़ है। सऊदी अरब में जन्नत का एक बाग भी वाक़ है जिसे जन्नतुल बकी का नाम दिया जाता है। अहले बैत और सहाबा कराम की कब्रें भी इस बाग में कायम हैं। इस देश का कौमी जानवर ऊँट जबकि कौमी खेल फुटबॉल है। यहाँ की करेंसी रियाल कहलाती है जो पाकिस्तान के 42 रुपए और इंडिया के 20 रुपए के बराबर होती है। मक्का शहर का कूड़ा शहर से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में दबाया जाता है। यहाँ पर 2200 तरह के खाने पकते हैं। सिर्फ मक्का में एक दिन के अंदर 3 लाख मुर्ग की खपत होती है। सिर्फ मक्का में 70 लाख एसी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर 6 और 8 सिलेंडर की गाड़ियाँ दौड़ती हैं। यहाँ खजूर के सिवा कोई फसल नहीं निकलती, फिर भी दुनिया की हर चीज़ और फल सब्जी आपको यहाँ मिलती है और बेमौसम यहाँ पर बिकती है। मक्का में 200 क्वालिटी की खजूरें बिकती हैं और एक ऐसी खजूर भी है जिसमें हड्डी या गुठली नहीं होती। यहाँ बकरे का गोश्त 12 से 15 दिन तक रखा जा सकता है। यहाँ का सबसे मशहूर होटल अल बैक है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बेहतरीन पका पकाया मुर्गा दस्तयाब होता है। यहाँ पर दो का नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ तरक्याती कामों के लिए जो पैसा हुकूमत से मिलता है वो पूरा का पूरा खर्च कर दिया जाता है। यहाँ के रास्तों की मालूमात मर्दों से ज़्यादा औरतों को होती है। यहाँ पर मुकम्मल खरीदारी भी औरतें ही करती हैं मगर पर्दा में रहकर। उम्मीद है दोस्तों सऊदी अरब के बारे में हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए दिलचस्प मालूमात चैनल में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।